सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਰਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਰਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਹੈ ਬੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
केते अगणत नहीं विचारो, केते खप टुटै बेकार, केते लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केते दुख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणै होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोह खाए, आपे जाणै आपे दे, आखै से पे के के, जिस नो बख्शे सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आभै मुल लै जाए, अमुल पाए मुला समाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रमाण, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बख्यान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मोन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे, ताख न सकै के जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाणै साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिया सिर गावारा गावार। सो दार केहा सो कार केहा, जित भय सर्व संभाले, बाजे नाद अनेक संखा, केते बावण हारे, केते राग परिस्यो कईन, केते गावण हारे, गावै तोनो पौण पाणी बह संतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जाणै, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर बर्मा देवी सोन सदा सवारे, गावै इंदे दासन बैठे देवतियां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावै मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे 68 तीर्थ नाले, गावै जोध मां बलसूरा, गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावै जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई। मुंदा संतोख सरमपत झोली, ध्यान की करੈ विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख होए, लख होवै लख बीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, एक राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जिये जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म,
केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काट कड़िया है रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जब ते दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। शरण कल गुरु साहब जी ने सेवा ली थी, प्रकरण लिया था गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कुछ विशेष पहलू, बहुत ही विशेष पहलू। ज्ञान से गुरु को नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जहाँ पर ज्ञान खत्म होता है ना, वहाँ से गुरु को पाने की पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे कि मैं 1000 लाख किताबें पढ़ लूँ, ज्ञान हासिल करके प्रभु को पा लूँगा, नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल करके, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, इंसान में अहंकार ही बढ़ता है, क्वेश्चंस ही बढ़ते हैं, आंसर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी, सब जानते हैं उनके बारे में, एक कमाल की हस्ती है, अत का तेज दिमाग। इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, अब मैंने किया गुरु धारण करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कोई दर नहीं छोड़ा उन्होंने, भटक भटक के जहाँ पता चले वहाँ चले जाए, पर मन को सेटिस्फेक्शन नहीं कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सबसे जाके एक ही सवाल पूछते थे, भगवान दिखाओ, भगवान है? सामने वाला कहता है, कहते दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में भटकते भटकते जब पहुंचे रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में ले रहा है समझाने के लिए, क्योंकि अगर हर पहलू लेने लगे तो फिर जो पॉइंट पे कथा होती है ना, वो रह जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा कि भगवान है, कहने लगा है। स्वामी जी कहने लगे, रामकृष्ण परमहंस कहने लगे है। कहने दिखाओ। उन्होंने बाँह पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना है तो रुक जा। इतने कॉन्फिडेंस से पहले किसी ने नहीं कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख पाएगा? देखने की हिम्मत है तो रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी विवेकानंद जी रुक गए। हिस्ट्री है, कई साल रुके ले उनके पास और रोज़ बैठ के वार्तालाप करी, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ी थी। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जवाब देते रहे, किसी चीज़ को ना नहीं किया। जो सवाल पूछो उसका जवाब दे दे, अगले दिन और सवाल लेके आ जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, सालों तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन फिर आ गए स्वामी विवेकानंद जी, कहने लगे और सवाल है। वो कहने की बात सुनी इधर बैठ। जब तक तेरे मन में ये शंका, ये सवाल है ना, जो तू पाना चाहता है वो नहीं पा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सवाल के बाद फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब तक तूने पूर्ण समर्पित तो कर, जैसे कल बात निकली थी कि 100% अपना दे दे गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दे। एक बार करके तो देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी जी ने विचार किया, बैठे थोड़ी देर। कहने कि क्या करूँ आत्मसमर्पण? कहने कि मन के विचार छोड़ दे, सवाल छोड़ दे, शंकाएं छोड़ दे। एक बार पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दे कि जो मैं करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं छोड़ता हूँ अपनी मत, आप जो करें। तो कहते हैं उससे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसे ज़मीन पर लटा के उसके छाती पर पाँव रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। छाती पर पाँव रख के खड़े हो गए जोर से कि अब चिल्लाएगा, भागेगा, डर जाएगा या श्रद्धा खत्म हो जाएगी। पर सच में स्वामी विवेकानंद ने अपना सारे क्वेश्चन, सारे तर्क छोड़कर मन समर्पित करके कुछ नहीं कहा। तो कहते उस वक्त उन्होंने पकड़ा, उसे उठाया, गले से लगाया। और उस स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मुझे आत्मज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टोटल सरेंडर जब किया तब आत्मज्ञान हो गया। अब मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? हमारी कोशिश क्या है ना, हम बूंद हैं, बूंद। बूंद सागर को पा सकती है? जान सकती है कभी? बूंद सागर को जान सकती है? नहीं। वो क्या कर सकती है?
सागर में समा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी सागर का भेद ले सकती है? नहीं, समा सकती है। उसके भीतर समा के उसके जैसे हो सकती है, पर उसको जान नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह गुरबाणी में, जपजी साहब जी की वाणी में क्लियर कट कह गए कि एवड़ ऊंचा होगा कोई तीस ऊंचे को, इतना बड़ा कोई होगा तो उसे कोई जानेगा ना, उतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको समर्पित करके जाना जा सकता है, ज्ञानी बनकर उसे नहीं पाया जा सकता। हाँ, अज्ञानी बनकर पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं, हम सबको बहुत नॉलेज है। कहते नहीं संसार में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? कहते ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के पास भरा पड़ा है, बैठो ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? आसान काम है सबसे संसार का ज्ञान देना। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पर खुद चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे पता कितना मुश्किल है, जो स्टेज पे बैठ के मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातें, जब उस पर खुद चलना पड़ता है तो हाथ खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तर्स करके चलवा ले तो चलवा ले, बड़ा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, लगभग इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बूंद ने सागर में समा जाना है, सागर का भेद नहीं जानना है। पातशाह कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, शरण कीजिए। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहें तू तो सागर है और मैं मछली, तेरा अंत कैसे पाऊँ? सारा जीवन भी चलता रहूँ तो भी नहीं पा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सागर है ही इतना बड़ा, मैं मछली। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं हमें समझाने के लिए कि तू एक मछली है, सागर का अंत पाने चली है, कैसे पाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द की आखिरी तुकें। समर्पण कैसा? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जेता दे तेता हो खाओ, ब्यादर नाही कैदर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने इम्तिहान लिया था, आखिर में बहुत सारे लोग साथ में थे ना, ये घटना शायद सुनाई है। गुरु नानक पातशाह ने गद्दी देनी थी ना, तो अभी निर्णय करना था कौन किसे दें, और लोगों को बताना भी होता ना इसे क्यों दी। तो कहते हैं कि काफ़ी लोग जो बहुत सेवा करते थे, सेवादार साथ में थे, बहुत लोगों का नाम आया। तो जब गुरु नानक पातशाह ने सबसे पहले तो धारण का रूप इख्तियार कर लिया, हाथ में डंडा ले लिया और सबको पीटने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सारा जीवन किसी से जोर से बात नहीं की और आज डंडा उठा लिया है। कईयों को लगा भाई बूढ़ेपा आ गया है, इसमें ऐसा ही होता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी लोग भाग गए डर के कि डंडे कौन खाएगा। उसके बाद भी जो बहुत प्रेम करते थे पीछे चलते रहे। तो गुरु नानक पातशाह ने कौतुक बरताया, चांदी का ढेर लगा दिया और चलते जा रहे हैं। चांदी का ढेर देखकर काफ़ी लोग रुक गए, चांदी इकट्ठी करने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा आगे गए, पीछे मुड़ के देखा काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं। सोने का ढेर लगा दिया, काफ़ी लोग वहाँ रुक गए। आगे चल के हीरे जवाहरातों का ढेर लगा दिया, सब रुक गए, केवल 2 बचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरे जवाहरात देख के सब रुक गए कि ये इकट्ठा कर ले, दूसरे ले जाएंगे। बचे भाई लैना जी, बाबा बुड्ढा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा, उन दोनों से, कि भाई तुम लोग क्यों पीछे आ रहे हो, जाओ तुम भी, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तो उन्होंने दोनों ने पता क्या जवाब दिया, बाबा बुड्ढा जी ने, भाई लैना जी ने। भाई लैना जी जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी मिले, ये पंक्तियाँ जो जवाब दिया उन्होंने कि जेता दे तेता हूँ खाऊँ, ब्यादर नाही कैदर जाऊँ। कि पातशाह जो चले गए उनका कोई ना कोई होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कोई घर होगा, उनको कोई द्वार होगा। हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं, चाहे मारो चाहे रखो, हम तो आपके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण। अपने को समर्पित कर दिया, गुरु जो चाहे कर ले। कल बात आई थी
गुरु ने जो चाहे किया तो शिष्य की जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए शरण में तो आना ही पड़ेगा, एक पॉइंट समझ लेना। बात चल रही गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। कोई सोचे मुझे क्या ज़रूरत है शरण की, आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। चाहे आज आओ, कल आओ, परसों आओ, 1 जन्म बाद आओ, 100 जन्म बाद आओ, 100 साल बाद आओ, आना तो पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे 100 युगों के बाद आओ, जब तक शरण प्राप्त नहीं होगी मुक्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुक्ति का भाव यहाँ ये नहीं है कि बाबा नानक सिंह जी कहते थे मुक्ति बहुत छोटी चीज़ है। हम मुक्ति इसलिए कहते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बहुत छोटी चीज़ मुक्ति। राज न चाहो, मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमल। जिसको गुरु की शरण मिल गई ना, उसको तो गुरु से प्रीति मिल गई, प्रेम हो गया गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी आ जाओगे उतना समय बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है, वो श्रवण करते हैं। 2 पंक्तियाँ पढ़ लें। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। चाहे कोई कितना भी समर्पित हो जाए ना, बिना पूर्ण विश्वास के, पूर्ण भरोसे के शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण कोई छोटी चीज़ नहीं है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक बात बार बार समझा रहे हैं। कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार पूर्ण मन करके मेरी शरण में आ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में शरण में कब आया? जब उन्होंने विराट रूप देखा, दर्शन किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समझाते रहे, नहीं समझ में आई बात, पर जब विराट रूप के प्रत्यक्ष दर्शन किए अर्जुन शरण में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास हो गया। वाणी तो कहती है ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति 100%, उसी वक्त तत्व ज्ञान, तत्व कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें लगे कि हमें गुरु पे पूरा विश्वास है तो हम तो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गए होते अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लिया करो, थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए, बुखार कितना है ना, गुरबाणी की पंक्तियाँ थर्मामीटर है। अगर हमें लगे हमें गुरु पर पूरा विश्वास है फिर तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है, हमें शंके ही शंके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए ही धन गुरु नानक। बड़े बड़े शंके तो दूसरे हो गए, छोटे छोटे शंकाएं भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए हमारे। मुझे संगति मिलती है ना, कैसे कैसे सवाल पूछती है, मैं हैरान होता हूँ। मतलब बताया भी नहीं जा सकते ऐसे सवाल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सोचता हूँ कमाल है, ये रोज़ सुनने वाले लोग हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर ऐसे हैं। कई लोग हैं गुरु की ऐसी कृपा हो गई है, सवाल ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ज्ञान हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल शुक्राना करने के लिए अमृत वेले उठती हैं, शुक्राना करने के लिए आते हैं, खुद शुक्राना करते हैं बस। जिसे टोटल सरेंडर हो गया ना, वो फिर शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं कहता गुरु तूने क्या किया। जब सरेंडर टोटल कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो मर्जी करे, छाती पे चढ़े, चाकू चलाए, जो मर्जी करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख दे सुख दे,
सवाल नहीं, फिर टोटल सरेंडर उसे कहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी गंगा में स्नान करने जा रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर साल जाता है वो, क्योंकि उस ज़माने में जाना इतना आसान नहीं होता था। पंजाब की धरती से चल के गंगा का स्नान करने जाना, ना कोई साधन, कितने दिन लग जाते थे चल कर जाना, फिर चल कर आना। एक तरह की भक्ति। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जा रहा है, रास्ते में एक साधु मिल गया। साधु से बात करते करते जंगल में से गुजर रहे हैं। बात करते करते उनके साथ एक मित्रता हो गई। उनके साथ एक काफ़ी दिन गुजारे, गंगा में स्नान किया और आ गए। रास्ते में इनका घर आ गया। इन्होंने साधु से कहा कि आप आगे जा रहे हो, मेरा घर यही रास्ते में है, और मेरे घर में रुक जाओ एक रात। हर से बोलिए धन गुरु नानक। साधु रुक गया, रात को भोजन कराया, सेवा किए। सेवा हुई तो बचन चल पड़े बातें करते करते। और साधु ने पूछा आपका गुरु कौन है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने कहा गुरु, मैंने तो अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया। साधु उसी वक्त बड़े क्रोध में खड़ा हो गया कि मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। आपके साथ रहा, आपके हाथों से भोजन खाया, निगुरु के हाथों से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और गुस्से से, क्रोध से वो वहाँ से चला गया। ये बात जिसे कही कि मन में बहुत बड़ी चोट कर गई कि मैं इतना बुरा हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे पूरा गुरु कहाँ पे मिले? तलाश शुरू हो गई, कई जगह भटके, कहीं मन को शांति नहीं मिली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, गुरु को पहचानने की एक पंक्ति है हमारे पास, तो हमें तो भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठा है। जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कित विध मिला है मेरा सतगुरु प्यारा, हाँ खिन खिन करी नमस्कार। कोई मुझे मेरे गुरु से मिला तो दे, मैं हर सेकंड उसका शुक्राना करूँगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मिलिए मन होए आनंद, जिससे मिलकर मन में आनंद आ जाए। आनंद वो नहीं जो भोजन खाने से आता है, हमें बड़ा स्वाद है, नहीं, ये आनंद अलग है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी मस्ती छा जाती है, ऐसा नशा छा जाता है, कई कई घंटों तक, कई दिनों तक उतरता नहीं, अगर पूर्ण गुरु मिल जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भटकते रहे, भटकते रहे। रात का समय है, अपने भाई के घर में रुके हुए ये जिनकी बात कर रहे हैं। तो भाई के घर में रुके हैं, तो ये पंक्तियों की आवाज़ इनके कानों में पड़ी अमृत वाली, क्योंकि रात भर जागते थे उदासी में कि गुरु की तलाश कहाँ मिलेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियाँ सुनी उन्होंने, श्रवण कीजिए। करणी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दो लेख पे। जो जो किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाहि अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो ये है कि भाई, तूने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनके हिसाब से निरंकार ने
तेरा स्वभाव तुझे संस्कार देकर धरती पर भेजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पाप पुण्य, तेरे गुण अवगुण, इन सबको मिला के तेरे संस्कार बने, उसी प्रकार से तेरा स्वभाव बना के। हर आदमी का स्वभाव अलग होता है। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा समझ ली। अर्जुन ने सवाल किया था कृष्ण जी से कि अगर दुर्योधन तमोगुण है तो उसमें उसका क्या कसूर? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसे क्यों मारूं मैं? आप तो दया के सागर हो, मुझे मारने के लिए क्यों कहते हो? कृष्ण जी कहते हैं, एक ये पॉइंट समझने लायक है। बहुत लोगों के मन में होता है बहुत कुछ ना इस तरह से, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं पूछते हैं। एक आदमी का स्वभाव ही कड़वा है, गलत स्वभाव है, लोगों को परेशान करता है, फिर उसे सजा क्यों दे? है तो वो भी स्वभाव तो भगवान ने दिया ना उसको। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी यही जवाब दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, स्वभाव किसी का कैसा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना। किसी का स्वभाव कड़वा है, कोई झगड़ालू है, कोई निंदक है, लोगों में झगड़े कराता है। कईयों का स्वभाव नारद मुनि वाला होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, लोगों में झगड़े करा देना। कोई का स्वभाव होता है कि हर एक से लड़ पड़ना। अब उनका स्वभाव ऐसा है, उनके संस्कारों के हिसाब से वैसे बन के आए। तो कृष्ण जी कहते हैं स्वभाव किसका कैसा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके हाथ में है ही नहीं। पर अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी के गलत स्वभाव से पूरे समाज में गंदगी फैल रही हो और फिर भी उसे रोका ना जाए, वो अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करे, तो ये अपराध है। उसे मारना फिर जायज़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम बुरे हैं। आज हमारी आंखें पराया रूप दिखती है, आज हमारा मन करता है दूसरे का धन छीन ले, किसी तरह से हमारा हो जाए। ये हमारा स्वभाव अगर है, बन के आया है हमारी, ठीक है, जैसा हमको संस्कार मिले वैसा बन गया। पर इसे बदलने की कोशिश ना करना, अपनी तरफ से कोई प्रयत्न ही ना करना। अभी नॉनवेज खाने का मन करता है, ज़बान का स्वाद है, पर सारा सुनने के बाद अपने को चेंज करने की कोशिश ना करना, थोड़ा सा भी प्रयत्न न करना, यह अपराध है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कोशिश करती है उन्हें माफ़ी है, जो कोशिश नहीं करते अपराधी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की वाणी ये कह रही है कि तेरे पिछले जन्मों के हिसाब के, कर्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बनाकर, तेरा स्वभाव बनाकर तुझे भेजेगा। तुझ में गुण अवगुण उस हिसाब से हैं। किसी बच्चे में जन्म होते ही सहज गुण होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, बड़ा समझदार होता है, कई बड़े अजीब से होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। संस्कार, पूर्वले कर्म, कई बच्चों को जन्म लेते ही वाणी कंठ हो जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्हें 32, 34 वाणियाँ कंठ है 5-7 साल की आयु में। मैं हैरान हूँ, इतनी वाणियाँ, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्हें कंठ है। मैंने अपने हाथों से उनको इनाम दिया है और मैं उनको कह रहा था कि इनाम तो मुझे आपके, मैं क्या दे सकता हूँ, चरण धूल ले सकता हूँ आपकी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? पूर्व संस्कार। एक वाणी नहीं कंठ होती हमें। जाप साहब जी की वाणी, उन्हें 34 वाणियाँ कंठ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं पिछले जन्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बने हैं, तुझ में गुण अवगुण है। पर अगर तू इस जन्म में भी नाम नहीं जप रहा तो फिर जो तेरे में गुण बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। माने एक न चेतस मूड बना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये पंक्तियाँ जब उन्होंने सुनी, रात को जाग रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, एकदम मन जुड़ गया, एकदम मन जुड़ गया। काफ़ी देर तक समाधि लग गई और फिर नीचे उतरे तो पूछा कौन पढ़ रहा था ये पंक्तियाँ। तो आवाज़ आई कि नाम आया इतिहास में बीबी अमरो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु नानक की बेटी, जहाँ इनकी शादी हुई उस घर में ये अमृत वेले उठ के इस शब्द का उच्चारण कर रही, वाणी को बड़े आनंद से पढ़ रही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है कि गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है, बड़ा ज्ञान है इसमें, बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तो उन्होंने जब ये पूछा कि ये वाणी किसकी है, ये पंक्तियाँ किसकी, किसने लिखी हैं, तो उन्होंने कहा गुरु नानक ने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार गुरु नानक देव जी का नाम सुना और मन को ऐसे तीर लगा जैसे जन्मों के बिछड़े हुए मिलाप का समय आ गया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक नाम ही इतना प्यारा है।
सोचो ना, संसार में ऐसा कोई दूसरा नाम है? जरा विचार करके देखो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और मुझे किसी मुसलमान ने बताया था, जो बहुत जुड़ा हुआ है, कहते हैं हमारे कुरान शरीफ में गुरु नानक पाशा का नाम आया है उनके आने से पहले। काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउ लेना तेज मान ले नानक शाहन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि 900 साल बाद धरती पे परतक अल्लाह कहता है मैं आने वाला हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं अगर उस समय आना था तो मुझे अभी क्यों भेजा, मैं भी आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता उस समय। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो गुरु नानक जिनके दर्शन के लिए 4 युगों तक ऋषि एक मठ में बंद होकर भीतर बैठा रहा, धरती के भीतर दबा रहा। वो गुरु नानक, ये वो गुरु नानक। वो साखी कितनी प्यारी, मुझे इतनी अपील करती है वो साखी सुनने के बाद ऐसा लगता है धन गुरु नानक कहे तो जो चाहो हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम से कहे तो सही कोई, इतनी ताकत। वो सिद्ध याद है जो पत्थर की शिला पे तैरता था, साखी सुनाई थी 2-3 साल पहले। उसने कई हजार सालों की भक्ति करके ये ताकत हासिल की थी कि जो पत्थर की शिला है पानी में चलती। और जब वो चलनी बंद हो गई, शॉर्ट में दास बता रहे हैं, क्योंकि किसी वजह से चलनी बंद हो गई, गुरु नानक पातशाह ने भेजा था, उन्हें दिखा रहा था मैं तुम्हें सैर करा के लाऊं। अपनी शक्ति गुरु नानक को दिखा रहा था। तो जब उसने कुछ गलती की, शक्ति उसकी चली गई, तो किसी ने उसे कहा, कहने लगा मैं अभी समुद्र के बीच में खड़ा हूँ, वापस कैसे जाऊँ किनारे पे। तो पता है उन्होंने क्या कहा उसे, कहने के एक बार कह दे धन गुरु नानक। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है इससे क्या होगा? कहते कह के तो देख। जिस शिला को चलाने के लिए उसने 1000 सोलों का तप किया था, एक बार उसने कहा धन गुरु नानक और वो शिला चल पड़ी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो पूछता है गुरु नानक कौन है? वो मुस्कुरा के कहते हैं साधु तू जा, तुझे पता चल जाएगा। और जब उसे पता चला जिनको मैं शक्ति दिखा रहा था वही है गुरु नानक, जिनका एक बार नाम लेने से मेरे हजारों सालों का तप का फल मुझे मिल गया। कैसी है मेरे गुरु नानक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। तुम शरण आए आया ठाकुर, तुम शरण आए धुन हम गा रहे हैं ना, तुम शरण आया ठाकुर, ये धुन बनाई है भाई साहब, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वालों ने। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनकी बनाई हुई धुन है, बहुत कमाल की धुनें बनाते थे, बनाते हैं अब भी। श्री हरजिंदर सिंह जी का नाम तो सबने सुना है, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, उनके भाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
उनका कहना है कि ये दोनों हम दोनों भाइयों ने मिलकर बनाई थी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि शब्द के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से धुन बनाना ना बहुत मायने रखता है कि कैसे बोल हैं उसके, उस हिसाब से धुन, ताकि वो उसके साथ न्याय कर सके शब्दों के साथ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनकी बनाई हुई धुन है, तो मन किया उनका नाम लेके उनको समर्पित कर दें। आइए 2 पंक्तियाँ फिर गाएं। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया उतर गया मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वे जिनकी दास कथा सुना रहे हैं, जिन्होंने बाणी सुनी, पहली बार गुरु नानक का नाम सुना, ये कौन? जो आगे चल के गुरु अमरदास जी बने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तलाश में हैं गुरु के। जब बाणी सुनी, हाथ जोड़ दिए, उनकी बहू है बीबी अमर, उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा मुझे अपने गुरु से मिला दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक से मिला दे। तो बीबी अमरों ने कहा कि गुरु नानक पाशा तो शरीर छोड़ गए, अब उनके बदले उन्होंने गद्दी पे बिठाया मेरे पिताजी को, गुरु अंगद देव जी को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास बैठकर मैं बाणी सुनती रहती हूँ थी और मैंने बाणी कंठ कर ली, जिसका आनंद मैं मानती हूँ यहाँ पे। तो कहने लगी मुझे ले चल जहाँ पे वो है। वो कहने लगी मुझे हुक्म नहीं है इस तरह से आने के, जब तक वो बुलाए ना। कहने लगी मेरे खातिर चल, मुझे ले चल। मैं 60 साल की आयु हो गई है मेरी, बूढ़ा हो गया हूँ, जंग खाया हुआ लोहा हूँ मैं। ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में, किसी काम का नहीं ये लोहा। अनाथ हूँ मैं, ये वचन उनके। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले तो जरा ये कुछ पॉइंट विचार करने वाले। एक गुरबानी की 4 पंक्तियाँ सुनी उन्होंने, 4 पंक्तियाँ, आधा तो वहीं पर समर्पण हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज बाणी सुनते हैं, क्या फ़र्क है? पूरे बड़े संस्कार होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु अमरदास जी का जीवन अगर पूरा देखेंगे ना पहले से, तो एकदम धर्म की किर्त, मेहनत की कमाई, धर्म की किर्त, सच बोलना, जीवन शुद्ध। एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है साथ संगत जी। एक पॉइंट समझ लेना, गुरु नानक पाशान के 3 मूल सिद्धांत। लोग कहते हैं नाम जपो कीर्त करो वर्ण चुको, नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सारे इतिहास में जितने भी, चाहे भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, चाहे गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है, चाहे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, बाबा जो पुरातन जन्म साखी है भाई बालाजी वाली बड़ी,
सब में 3 मूल सिद्धांत में सबसे पहले आए धर्म की कीर्त, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर नाम जपो, फिर वंड छको है। सबसे नाम सब देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में सारे वेद शास्त्रों में सबसे ऊपर है नाम, है ना। नाम के ऊपर कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने नाम से ऊपर धर्म की कीर्त को रखा है। धर्म की कीर्त किसे? बिना हेरे फेर के मेहनत करके जो खाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं ना, उनका थोड़ा जपा हुआ भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, और जो हक मार के हेरा फेरी करके बेईमानियाँ करके खाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जपा हुआ भी फल थोड़ा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से कई बार सवाल पूछते थे, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, पातशाह कहीं पे तो आप कहते हो आंखें बंद करो और प्रकट हो जाते हो, कहीं कहते हो चलो, चलाते क्यों? कहते आपने ध्यान नहीं दिया। मर्दाना जी को पूछते, गुरु नानक पातशाह तूने ध्यान नहीं दिया कि जहाँ चलाता हूँ क्यों चलाता हूँ? जब किसी ऐसे के पास जाता हूँ, जैसे भाई लालू जी, जब कहीं किसी ऐसे के पास जाता हूँ जो मेहनत करके खाता है, धर्म की कीर्त, 10-9 की कीर्त करके खाता है और नाम जपता है, उसके पास एक एक कदम चल के जाने का फल बहुत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, उनको फल की पड़ी है। जो तारने जा रहे हैं वो चल के जा रहे हैं, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो मेहनत करके खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, जो मेहनत करके खाते हैं, अपनी हक का खाते हैं, दूसरे का हक नहीं मार के खाते, जित प्रॉपर तोलते हैं, बल्कि ज़्यादा तोलते। 13 का सिद्धांत क्या था? जब तक पलड़ा नीचे तक टच नहीं होता तो गुरु नानक पातशाह तोलते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ऐसे तोलते हैं ना, सोने के जैसे, कहीं एक दाना ज़्यादा न चला जाए, वो नीचे झुका के फिर देते थे, उसे कहते थे 13। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो मैं क्यों देखूं कितना देना है, दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन जो इस प्रकार मेहनत करके खाते हैं, बहुत जल्दी परमात्मा को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जीवन था। जब किसी के जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आए ना, समझ जाना इसका जीवन सच्चा सुच्चा है, अंदर सफाई थी, तभी जल्दी कृपा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग पूरा कई सालों से आते रहते हैं, वो कृपा नहीं होती, कोई 2-4 दिन में आके ले जाता है, क्योंकि उसने अपना करैक्टर संभाल करके। करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पराई स्त्री का संग ना करना, पराई धन पे नज़र न रखना, पराए तन पे नज़र न रखना, ये करैक्टर है। ये गुरु को बहुत बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस गुरु जिससे करा ले, ये किसी के बस की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सत्संग में यही होता है। सत्संग में जब नाम जपना, अमृत लटना शुरू करोगे, आहिस्ते आहिस्ते सारे दिव्य गुण भीतर आने लग जाएंगे। आज जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे मन उकता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि नाम का रस आने लग गया है। ये तब तक है जब तक नाम का रस नहीं आया। थोड़ा सा भी जिसे रस आ गया ना, वो इन रसों से कटने लग जाता है। एकदम नहीं छूटता, पर कटने लग जाता है, और एक दिन ऐसा आता है छूट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ए रस छोड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने 4 पंक्तियाँ सुनी, मन दे बैठे गुरु नानक को। कहने लगे गुरु नानक के दर्शन करा दे। बीबी अमर कहने लगी वो तो है नहीं, मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी इस वक्त गुरुगद्दी पर हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं नाम से, यही उनकी ड्यूटी लगाई है गुरु नानक पातशाह ने। तो कहली मुझे उनके पास ले चल। वो उनके वचन मान के ले चली साथ में। बड़ी लंबी घटना है, मैं फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि सारे पहलू नहीं लिए जा सकते। कई लोग कहते हैं भाई सब शॉर्ट में मत लिया करो, तो भाई फिर प्रकरण ख़त्म ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मुझे कम से कम 4 साखियाँ लेनी थी, देखिए 6 बजने को आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो बीबी अमरो ने कहा देखो मैं बिना आज्ञा आई हूँ, ऐसे मेरी हिम्मत नहीं मैं अपने पिताजी के आगे जाऊँ, गुरु हैं वो, पर मैं फिर भी आपके कहने पे आई हूँ कि आपको मैं टाल नहीं सकती। आप मेरे सौरे के रूप में हो, बड़े हो मुझसे, मैं आपको मना नहीं कर पाई। पर पहले मैं अंदर जाती हूँ, उनका देख लेती हूँ
कैसा स्वभाव है, कैसा अभी इस वक्त मूड है, फिर मैं आपको बुलाती हूँ, आप बाहर बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अंदर गई, माथा टेका, पास में बैठ गई। गुरु अंगद देव जी ने कहा, क्यों आई है? बिना बुलाए तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुका दिया बीबी अमरों ने। तूने सोचा भी कैसे आने का? फिर कहने लगे, चल आ तो गई है, जिसे साथ में लाई उसे बाहर क्यों छोड़ाई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर्जामी है ना गुरु। कहने लगे, मैं अभी लेके आती हूँ। तो वो लेके आए। जब पहली बार गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के दर्शन किए, गुरु अंगद देव जी खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? बहुत सारे लोग आसपास और भी थे, बड़े बाबा बुड्ढा जी वगैरह सारे थे उस वक्त। वो खड़े हो गए क्योंकि कुड़म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के कुड़म लगे, तो वो खड़े हो गए उठ के गले लगाने के लिए। तो गुरु अमरदास जी ने उसी वक्त माथा टेक दिया चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं कुड़म बनकर नहीं, सेवादार बन के आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला। वो गले लगाने के लिए उठे हैं, गुरु अमरदास जी चरणों में गिर पड़े हैं, माता सर चरणों में रख दिया। कुड़म के कोई रखता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? अहंकार का खत्म, त्याग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं कुड़म बनकर नहीं, सेवादार बन के आया, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अगर शरण चाहिए गुरु की, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा ना, ज्ञानी बनकर नहीं से पाया जा सकता, मूर्ख बन के पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रे जन मन माधो से लाइए। मन को माधो से लगा, चतुराई से नहीं पा पाएगा उसे, मन जोड़ ले उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्यों कहा है मन माधो से लाइए, मन माधो से लाइए? बार बार कहते हैं नाम जपो। वजह क्या है? कि मन गुरु के चरणों से जोड़, शरण प्राप्त कर। एक पॉइंट समझना, एक इंसान बीमार हो, बुखार चढ़ा हो, 102 103, भोजन दो, उसको भूख नहीं लगेगी, स्वाद नहीं आएगा, कहेगा भूख नहीं है। घर वाले कई बार पास में खड़े होते हैं, खा ले खा ले, वो कहता है मेरा मन ही नहीं कर रहा। होता है ना, अक्सर सबके साथ होता है। शरीर बीमार है, भूख लगनी बंद हो जाती है। सबसे पहले डॉक्टर पूछता है भूख लगती है? हाँ भूख लगती है, तो यानी कि स्वस्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर बीमार है, भूख लगनी बंद हो जाती है भोजन की। मन बीमार हो, भूख लगनी बंद हो जाती है भजन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग का नाम जपने में मन नहीं लगता, क्यों? बीमार है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट कर लो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। मन बीमार है, इसलिए भूख नहीं लगती भजन की, नित्यनेम करने का मन नहीं करता, मूल मंत्र जपने का मन नहीं करता, पता नहीं मन नहीं करता, बीमार है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब शरीर बीमार हो तो क्या करते हैं? थोड़ा समझ लें। शरीर बीमार हो गया, ठीक नहीं हो तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज लगाएगा, स्पेशलिस्ट आएगा डॉक्टर, यही होगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे, बस यही पॉइंट है। मन बीमार है, अब ठीक नहीं हो रहा, नाम जपने का मन नहीं कर रहा, घर में सत्संग में आ जाओ, ये हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का हॉस्पिटल है, सत्संग में आ जाओ, यहाँ पे नाम का ग्लूकोज चढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका नहीं जपने का मन कर रहा, उसको भी मन जपने का करता है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर अगर ज़्यादा बीमारी बड़ी हो गई, गुरु भेजेगा किसी संत को, स्पेशलिस्ट को, जा इसको ठीक कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी कहते थे, संत डॉक्टर होते हैं और सबसे बड़ी बीमारी के, और सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत उसका इलाज करते हैं, मार मार के अहंकार को निकालते हैं, चोट मारते हैं बार बार मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के चरणों में गिर पड़े कि मैं सेवादार बन के आया हूँ। गुरु अंगद देव जी मुस्करा पड़े, क्योंकि जानते हैं ना कि क्यों आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अपने साथ ले गए भोजन खाने, भोजन का समय हो गया, सेवादार आया और भोजन खा लो। तो इतिहास में लिखा है गुरु अमरदास जी, बाबा बुड्ढा जी, जितने भी उस वक्त के बड़े संत महापुरुष थे, सब एक पंक्ति में बैठे, पंगत में बैठे।
और अपने साथ इनको भी बिठाया, गुरु अमरदास जी को, कि भोजन खाओ। भोजन खाया उन्होंने। इतिहास में लिखे कई दिन यहाँ पे रुके, कई दिन साथ में रहे। वो उनका सत्कार करते रहे, ये भोजन खाते रहे, वहीं रहे, उनका प्रवचन सुनने, सब कुछ करना। और 100% मन जो मानना होता है ना, जिसे 100% कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ गुरु अमरदास जी का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये नेचुरल है, थोड़ा पॉइंट को समझना। बाबा नानक सिंह जी कहते थे एक टके का घड़ा भी खरीदना, पुराने ज़माने में घड़ा टके का आता था, मिट्टी का घड़ा। कहते थे एक टके का घड़ा भी खरीदना ना, उसको टनका के देखते हैं। जब गुरु धारण करना हो, किसी को पकड़ना हो, किसके आगे पूरा तन मन धन अर्पण करना हो, सब कुछ अर्पण कर रहे हैं ना गुरु को, तो टनका के देख लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि भाव परख कर लिया करो, पर एक बार परख कर ली, मन दे दिया, उसके बाद शंका करोगे तो डूबोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोनी महवाल से मिलने जाती थी ना, कच्चे घड़े पर तैर के जाती थी नदी में। कच्चा घड़ा कभी तैरता है? मिट्टी का कच्चा घड़ा पका भी नहीं, घुल जाएगा ना मिट्टी पानी में। और उसका सिदक, उसका प्रेम, उसका विश्वास महवाल से इतना, क्योंकि सोहनी महवाल, शशि पुन्नू, हीर रांझा, इनका नाम बाणी में आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारों में आया है, इन्हें सत्कार दिया है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम था, शरीर का प्रेम नहीं था, आत्मिक प्रेम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यही सोहनी जब डूबी, कैसे डूबी, कैसे मरी? घड़े पे तैर रही थी, उसी नदी में तूफान आया हुआ है, कच्चे घड़े पे ऐसा उल्टा करके तैर रही है, जा रही है नदी पार करके महवाल से मिलने पर। उस वक्त पहली बार इसके मन में शंका आया, अपने जैसे गुरु के प्रति शंका आ जाए तो डूब जाता है इंसान। शंका आया कि महवाल वैसे तो बहुत अच्छा है, पर उसकी एक आंख थोड़ी छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका सच्चा प्रेम था, उसने अपने पति में, उसने अपने महवाल में, उसने अपने प्रभु में नुक्स ढूंढ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूब गई और आवाज़ आई, वो डूबने लगी तो उसने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आकाशवाणी हुई, सोनी कच्चे घड़े भी कभी तैरते हैं? ये तो तेरा सिद्ध, तेरा प्रेम, तेरा भरोसा था, तेरा विश्वास था, जो तुझे कच्चे घड़े में तू नदी तैर के पार कर जाती थी। आज तेरे सिदक में खोट आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार गुरु को सर दे दिया, फिर शंका नहीं, फिर समर्पण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी बार परख करनी है पहले कर लो, एक बार सर दे दिया, फिर उसके बाद शंका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काफ़ी दिन बीत गए। ये पॉइंट एक एक नोट करने वाले, गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है। उन्होंने शरण मांगी है, पर गुरु अंगद देव जी ने अभी तक दी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भोजन खा रहे हैं, दोपहर का समय। गुरु अंगद देव जी सामने वाली पंगत में बैठे हैं, दूर जाके बैठ गए 3-4 पंगत छोड़ के संगत में, पर वहाँ भोजन खा रहे हैं, लंगर प्रसाद चख रहे हैं। डिटेल में बताया, पहले दाल चावल आए, फिर प्रसाद, बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज गुरु अमरदास जी ने अपने मन में कहा कि मैं अपना तन मन धन अर्पण करने जा रहा हूँ, इन्हें सारा जीवन यहीं पे सेवा करूँगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गए हैं। पर मेरा पक्का मन मान जाए, पक्का एक बार, अगर आज बिना मांगे गुरु अंगद देव जी मुझे अपना शीत प्रसाद दे दें, यानी कि जो भोजन खाएं थाली में थोड़ा छोड़कर स्पेशली मुझे दे दें, मेरे बिना मांगे, तो मैं पक्का मान लूँगा कि मेरे पूर्ण गुरु मिल गया, अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक परख। और जैसे इनके मन में ये ख्याल आया, साथ संगत जी, गुरु अंगद देव जी महाराज ने भोजन खाते खाते वो थाली छोड़ दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपने सेवादार से कहा कि ये थाली उनको दे के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही उनको वो थाली मिली, उनका रोना निकल गया। उन्होंने वो शीत प्रसाद खाया, गुरु अंगद देव जी का, गुरु का शीत प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपाट खुल गए, समाधि लग गई। अब आके जब चरणों में सर रखा तो केवल सर नहीं रखा, मन भी रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अंगद देव जी ने उन्हें कहा कि अब सेवा करो। सेवा, आपको फिर सारी घटना पता है, गुरु अमरदास जी ने कितनी सेवा की, कितनी कठिन सेवा की 60 साल की उम्र में।
72 साल की उम्र में जाके गुरगद्दी की प्राप्ति हुई। हर साल इतनी कठिन सेवा, एक चैप्टर फिर कभी लेगा दास, हर साल 1 सिरोपा मिलता था 1 साल के बाद उन्हें, वो सर पे बांध देते थे। 12 सिरोपे मिले, 12 सालों में 12 सिरोपे बांध लिए। यार से बोलिए धन गुरु नानक, निकालते नहीं थे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव गुरु के शरण प्राप्त करनी है तो पूर्ण विश्वास, अहंकार त्याग के गुरु मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब तक अहंकार नहीं हम अपना खत्म करेंगे, गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी। और अहंकार खत्म करने का एक ही तरीका है बस, वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हौ मैं खोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु की संगत, सत्संगत, सेवा और वाहिगुरु सिमरन, ये 4 चीज़ें हैं गुरबाणी में आई जिससे अहंकार खत्म हो सकता है। बस 5वां कोई तरीका नहीं है। साधु की संगत, सत्संगत, सेवा और वाहिगुरु शब्द का जाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए वाहे गुरु शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया। जिस शोभा को करह पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जिस शोभा को पाने के लिए दुनिया लाखों करोड़ों अरबों दान करती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, बड़े बड़े काम करते हैं लोग कि हमारा नाम हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। करते हैं ना, हम सब करते हैं बड़े बड़े काम कि दुनिया देखे और हमारा नाम हो जाए। अच्छा कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। करो ये नेक काम, पर नाम की लालच में नहीं, करने ही चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए, किसी का भला हो जाए, गुरु की खुशी मिल जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर अलग एक प्रकरण लेंगे कि दान किसे कहते हैं, हम कितनी गलतफहमी में रहते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असली दान क्या होता है? खैर बात बीच में आ गई। वाणी कह रही है, पातशाह कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की शरणी। तो इतने बड़े बड़े जो काम करता है, तू केवल गुरु की शरण में बैठ के भजन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप ले गुरु की शरण में बैठ के, गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा उससे? पूरे भरोसे के साथ। अच्छा कह रहे हैं, सा शोभा, जो बड़े बड़े काम करके शोभा नहीं होगी, उससे ज़्यादा शोभा तेरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी को गुरु नानक पातशाह ने कहा कुछ मांग ले। बाबा मार नाम सिंह जी ने भी कहा उनसे कुछ मांग ले, उनके गुरु ने। हाँ, गुरु नानक पातशाह की घटना है, जब पहली बार दर्शन हुआ, कहने को कुछ मांग ले। कहने के पातशाह आपका दिया हुआ सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कृपा है आपकी। गुरु नानक पातशाह ने 2 बार कहा, तीसरी बार कहने लगे हमारा मन करता है हमारी खुशी के लिए मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं साथ संगत जी। बाबा महाराम जी कहते 100 जन्मों से हमारे साथ आ रहा है, उनके गुरु कहते थे। और हर जन्म में एक बंदगी की इम्तिहान कर दी, और जब भी उसे पूछा क्या चाहिए फिर कहते बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ प्रभु का नाम, बंदगी चाहिए, बस बंदगी में रस है। इसलिए कहते हैं नाम दे से बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे पातशाह अगर आपका हुक्म ही है तो मेरी ऐसी कृपा कर दो कि सुई के नोक जितनी ज़मीन या कोई भी चीज़ मेरे नाम पे ना हो कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मांगा है? लोग कहते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन हो जाए, लाख एकड़ हो जाए, करोड़ एकड़ हो जाए, वो भी कम है। सारा संसार जितने निकलते हैं लोग, उनका कहना है कि सुई के नोक जितनी कोई ज़मीन कोई चीज़ मेरे नाम पे ना हो जाए, ये कृपा कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है धन बाबा नंद सिंह जी, कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके जैसा कोई एग्जाम्पल दिखता ही नहीं। बहुत सारे संत महापुरुष धन है, सबकी अपनी अपनी कमाई है, पर बाबा नंद सिंह जी का जो जीवन है ना, उनके जैसा कोई दिखता ही नहीं, सुनाई भी नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने पता क्या कहा तब? कहने लगे तू कहता है कि सुई के नोक जितनी ज़मीन कहीं ना हो, पूरी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं रह जाएगी जहाँ पे तेरा नाम नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्या है? क्या है? उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई स्कूल बनाए, कभी सुने? बाबा नंद सिंह जी तो कहते थे नाम तुलको छापना, हमारे पास आओ तो नाम की बात करो। ऐसे ऐसे संत महापुरुष पैदा कर दिए, उन्होंने हज़ारों स्कूल हज़ारों हॉस्पिटल बना दिए, पर बाबा नंद सिंह जी ने कुछ नहीं किया, केवल नाम जपा, और आज सारा संसार उनका नाम लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही पॉइंट समझाया, जो जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए अब समा हो गया है और ले नहीं सकते, गुरु मेहर करें। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिलते सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे शब्द वाजे कला जिकर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनह तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता वाचे धर्म हजूर कर्मी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहे गुरु 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 वाहे मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।